and this is your data set. Okay. First of all, you need to straight away check. Do I have Likert scale items? Yes. How do we know that these are Likert scale items? Again, a very stupid question. At this level, because we have finished 9 classes. How do we know that these are Likert scale items? Family is given. फैमिली से सेम फैमिली बट डिफरेंट नंबर नंबर Numbers. 1 2 3 4 नंबर जो हमने दिए हुए हैं, हमने This इसने may be an indication. मैंने एक टेक्निक आपको और बताई। भूल गया? हाँ, values में अभी यहाँ पे given है, No. activity से नहीं है, but still this is Likert. Again a problem from student to friend. वो कहते सर हमें तो पता है हमारा thesis है, हमें तो पता है क्वेश्चन में एबीडीसी ही है, आपको पता है, आपके एग्जामिनर्स को नहीं। You are trying to confuse your examiner. When you are going to make any attempt to confuse your examiner, as a result, they are going to do the same. ठीक है? जो Likert स्केल है, लाजमी उसको आगे करना चाहिए। कैसे करेंगे पता है? कंफर्म है सब? Yes. तो we have Likert scale items. ठीक है? अच्छा। अब आपको कौन सी चीज नोट करनी है इसके अंदर? अंदर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो नहीं है कि एंड में वेरिएबल्स बदले हैं। माँ टू ये तो आपको पता है कि ये क्या चीज़ है। डाटा स्क्रीनिंग के ना ये तो ये तो डेटा स्क्रीनिंग का पार्ट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने की जरूरत नहीं है। These are the evidence or evidences that you have applied multivariate outliers. ठीक है, तो इसको unnecessary remove ना। ठीक है? अच्छा, अब क्या करेंगे? यहाँ पे आपको एक प्लेफुल का एक वेरिएबल या डिस्ट्रिक्ट को एक वेरिएबल नजर आ रहा है? नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है? फैक्टर एनालिसिस नहीं है is not applied in its present form. Then what to do? You need to apply factor. Yes, factor analysis के लिए सबसे important चीज आप अलग अलग चीज चेक करेंगे. How many families we have? बताइए. 1 2 3 4 5 7 फैमिलीज Playful Seven. family. Yes. Computer literacy की तो दूसरी। second family. इस तरीके से total 7 families होनी चाहिए. Yes. यस ये कंफर्म करना है. Playful 1. Number 2 computer literacy. Number 3 atypical use. Number 4 Usefulness, joy, joy. information acquisition, Information acquisition, decision and quality. decision. So how many families you need to extract? 7 Remember. How many families we need to extract? How Seven. many factors we need to extract? Seven. It is 7. बस. अब यह start कर लेते हैं. Very easy. Analyze. dimension reduction, Dimension reduction. factors, Factor. That's why this is known as factor analysis. In the past, we use the word dimension reduction analysis. Dimension reduction analysis. Now known as factor analysis. Main point ये है कि आपको items are reduced to factors, ये लॉजिक है. Main जो भी आप यूज करें. कर दें? उसके बाद always press. reset, अब मुझे बताएं यहाँ से कौन से वेरिएबल्स एनालिसिस बॉक्स में move करें. all playful, all Likert scale यहाँ पे all ठीक है. तो you need to click over here. and drag down. और यहाँ से सिर्फ Likert स्केल आइटम आप यहाँ पे मूव करें. Yes? Yes, और यहाँ पे देखें any confusion, any doubt. no sir, Step number 1, analyze, dimension reduction, factor. Step number 2, reset, then step number next, Likert scale items will all be moved. Likert scale item, select and click over here to move. आपने कहा सर गलती से जेंडर भी आ गया, तो क्या करेंगे? बैक कर देंगे उसको. Click back. ठीक है? Is it okay? That Okay. is okay. Okay, चलो. Then there are few requirements. Click on Descriptives. descriptives and click on the last one. KMO and Butler's test. Dear students, remember these are the compulsory thing in your Department of Education districts. ठीक है? ये चीज आपको हिफ्ज होनी चाहिए. ठीक है? KM1 Bartlett test, then Continue. और कुछ नहीं करना है, जो है वो आप करें. ये कुछ नजर आ रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? Correlation matrix, coefficients Correlation and कौन सा coefficient. correlation है? positive Which correlation? अभी मैंने आपको बताया. सर तमाम चीजों की बेस क्या है? Bivariate, वही correlation matrix means
Bivariate. Bivariate correlation table. उस टेबल में what exactly you see? R values. What is the word? Coefficient. अगर मैं क्लिक कर दूं तो bivariate correlation का टेबल भी आ जाएगा. If required. You understand the point? इसमें आगे जाके एक एरर आता है. उस एरर को देखने के लिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे. जो एरर आएगा देन आप चाहिए. ठीक है? इस पूरी स्क्रीन में क्या करना है आपको? You need to click on Descriptives. and simply click on KMO and Bartlett's. check mark जो भी आप करते हैं and then Continue. ठीक है? कर दूं? कर दें. अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट समझ ये केम और ये होगा. कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इसको अनचेक करना है. ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये चेक है, इसको अनचेक करूं? नहीं सर. कुछ नहीं करना. मैंने सिर्फ क्या किया Continue. हम लोग मिनिमम स्टैंडर्ड पे खेल रहे हैं. ठीक है? जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे रिक्वेस्ट करेंगे. सॉफ्टवेयर विल गिव यू अ नंबर ऑफ टेबल्स. सिर्फ क्लिक करना है इस पर एंड क्लिक Continue. कंटिन्यू. चल सो फार सो गुड. अब क्या करेंगे? क्लिक ऑन Extraction. extraction, then click on fixed number of factors to To extract. 7. इसके click करेंगे. यहाँ भी click करेंगे. 7. You need to type. अब यहाँ पे another very major issue, because in the very first class in which we have started learning factor analysis, what exactly we have right here? 7. 7. बहुत सारे students ये assume कर लेते हैं this is a constant value and in factor analysis every time we need to write 7. 7. You understand the point? Yes. The point is, if you have 5 variables or 5 families, you can spot in your data set how many factors you need to extract. 5. If you have 15 families to be extracted, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15. 15 लिखेंगे. ठीक है? हमने 7 क्यों लिखा? We 7 families. Because we हैं. have 7 factors, 7 families, 7 components जो भी है. Is it okay? Okay. बस कुछ नहीं करना है. सब चीजों को वैसे ही छोड़ दो. Press. Continue. Then click on Rotation. rotation. और यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं. सिर्फ एक मेथड है. That is Varimax. Varimax. नोट कर लें. इसको बता देता हूँ very briefly. VARI VARIMAX. ठीक है? Varimax. What is Varimax? स्क्रीन पर देख लें. सबसे पहले इसको प्रोनाउंस करें. Varimax. Maximum. और ये क्या है? Very. Very maximum. ठीक है? इसी तरीके से इसमें एक और वर्ड है that is प्रो मैक्स. कहीं नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes sir. You see Pro Max? Yes sir. Yes. Yes. Now, what is the full form? Maximum Maximum Pro. proportion. Maximum proportion. तो जब proportion की जरूरत हो तो ये मैथड यूज करेंगे. जब वेरिएशन की मतलब होगा तो ये करेंगे. Now we are confused. Yes or no? Under what circumstances we should be using this method? Under what circumstances we should be using Pro Max? Promotion. ठीक है? अब इसकी स्क्रीन में एक छोटी सी डायग्राम बना रहा हूँ. तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. The very useful diagram. Very useful. There are two methods of Rotation. एक है Correlation. one method gives you correlated factors. Another method will give you correlated factors. ठीक है? There are two different types of correlation. ये क्या कहते हैं आप? Rotation. One method will give you Correlated factors. और Uncorrelated अब factors. इसको पहले understand करें. For example, we play different types of sports. ठीक है? Any idea? Just give me some example. Cricket, football, and for example, hockey.
These are three different things, but collectively they are Force. sports. अब मुझे बताएं, these are correlated factors या uncorrelated? Correlated. Relations of sports like तीनों ये स्पोर्ट्स है, जैसे ना? तो ये एग्जाम्पल यहाँ फिट होती है आगे। Correlated factors में. और एग्जाम्पल लिखते चले। सेकंड एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। What is organizational commitment? Your commitment is your school, college, university. ठीक है? पहली कंडीशन जिसमें आप दिल से स्कूल के साथ अटैच, दिस इज नोन एज अफेक्टिव कमिटमेंट। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। दिस इज नोन एज सेकंड वन, जिसमें आप दिल से खुश नहीं है, मजबूरी में। क्या करें, बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल नहीं है, हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया गया है, यू आर द ओनली मेंबर ऑफ ब्रेड एंड बटर जो रन रहा है। ठीक है, बताओ दिस इज योर खुशी, Compulsion. मजबूरी। बट दिस इज नॉट अगेन अ टाइप ऑफ कमिटमेंट। रोजाना सुबह आ रहे, रोजाना सुबह जा रहे। यहाँ भी कमिटमेंट है लेकिन दिल से। यहाँ पे कमिटमेंट कौन सी है? मजबूरी. मजबूरी से। तीसरी चीज, आपने 5 साल पहले सऊदी अरब में अप्लाई किया था टीचिंग जॉब के लिए, 5 साल से कोई जवाब नहीं आया। अभी 1 महीने पहले आपको स्कूल का वाइस प्रिंसिपल बनाया गया और 1 महीने के बाद जॉब आ गई वहीं से जहाँ से आप चाहते हैं। अब क्या करेंगे? वुड लाइक टू स्टे और गुड बाय द जॉब, या वुड लाइक टू अप्लाई और कंटिन्यू विद दैट जॉब? Depends. Right? Depends on the offer. Offer होना चाहिए। You have been waiting for this offer for the last 5 years. And of course we'll go. Definitely. कैसे जाएंगे? अभी कभी आपको वाइस प्रिंसिपल बनाया? अपना फायदा लेंगे। बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होगा। वो डायरेक्ट डिजाइन नहीं करेंगे आप उनको थोड़ा सा पहले से इन्फॉर्म करेंगे, उनको बताएंगे कि नेक्स्ट सेमेस्टर के बाद आऊँगी क्योंकि हमारा सेमेस्टर अभी स्टार्ट होगा। इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन टू द न्यू एम्प्लॉयर। कहेंगे जब यहाँ पे देखो इतने अच्छे इथिकल तरीके से, इखलाकी तरीके से आ रहा है, इसका नाम यही होता है। अर्जेंट नीड हो सपोर्ट अर्जेंट ठीक है, तो फिर सिंपल सी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। स्टेट अपने वीसी को बुलाएं और उनसे उनके पास चलो सर की रिक्वायरमेंट है, दे अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ठीक है, सबसे बड़ा मसला ये है कि हम आपसे कम्युनिकेट नहीं करते, और हम जिससे कम्युनिकेट करना चाहिए वो इज द साइनिंग अथॉरिटी, जिसको यूनिवर्सिटी में कहते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हम उनसे डिस्कस नहीं करते, हम उनसे करते हैं जिनके पास इख्तियार नहीं। और वो चीज़ पे किस तरह की, तुम्हें पता है शाहनवाज छोड़ के जा रहा है, कहीं नहीं जाना, तो पूछ रहा है सर जाओ या नहीं जाओ, और पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका प्रोफाइल जो है वो डाउटफुल हो गई। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि सर जब आपको जाना है ठीक है, लेकिन ऐसे छोड़ के ना जाए, थोड़ा सा कुछ सक्सेशन प्लानिंग करते हैं, कुछ करते हैं, इखलाकी तौर पे आपको थोड़ा सा कुछ दिन स्टे करके जाना चाहिए। तो इखलाकी तौर पे आप इखलाकी आपको कहते हैं आपकी एजुकेशन में नॉर्मेटिव, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज नॉर्मेटिव Commitment.